our Zoom meet here. We are meeting here for the doubt session on Indian economy class. Whatever doubts you guys have, you can ask me here. Can you all see me now? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So I'll be. You can raise your hand here. There is an option in the chat. First, go to the chat window and you will see an option to raise your hand. Whosoever would be raising the hand, I will be entertaining them one by one, of course. So, Sojita, right? Please unmute, Sojita. Unmute yourself so that we can see your doubts. Alright. Yes, one by one, please. Now you can start with your doubts, guys, everyone. You can unmute yourself, Alok Kushwaha, you can ask your doubt. So, everyone, one by one, you can unmute yourself, guys. जिनके जो भी doubts हैं, आप लोग अपने doubts पूछ सकते हो. Devyani, you can ask your doubt. Devyani Lingayat. Good evening, sir. Yes. Sir, I have a doubt regarding this in banking PPT. There was a mention of paid up capital reserve plus free reserves, and it should not be less than 5 lakh. Isn't it 5 lakh amount is too low for a bank? See, that is mentioned in the act. As I had told at that time also, जो amount act में लिखी हुई है, इसीलिए act के under I had explained in the polity class as well. एक्ट के अंदर रूल्स बनाने की जो पावर है वो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को है. अकॉर्डिंग टू द रूल मेकिंग पावर ऑफ द आरबीआई एंड द फाइनेंस मिनिस्ट्री, दे कैन चेंज इट टू सूट द कॉन्टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स. जब रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे 2013 में, तो उस टाइम पे जो न्यू बैंक्स के लाइसेंस की बात करी गई थी, रिलायंस ने न्यू बैंकिंग लाइसेंस इशू करने की बात करी थी, तो उस टाइम पे रखा गया कि बैंक स्टार्ट करने के लिए 50 करोड़ रुपीस इनिशियल कैपिटल देना होगा, राइट? सो ये चेंजेबल है, बट जो एक्ट में लिखी है दैट इज 5 लाख ओनली एंड दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड. ऑलराइट, इज इट क्लियर नाउ? ऑलराइट, हर्ष, यू कैन आस्क योर डाउट. Harsh, please unmute yourself. Good evening, sir. Yes. Sir, my question is the same as from the history. अभी इसके जैसे एक क्वेश्चन है मेरा. It is from the banking sector PPT and from page number 9. I think it was skipped in the video. So it was like, can I read this sentence, sir? Yes, sure. Banks advance loans not only on the basis of the deposits of the public, rather they also advance loans on the basis of depositing the money in the accounts of borrowers. Okay. So I want to know the meaning of the sentence. I'm just confused the public whether they also advance loans on basis in the sentence. On the basis of what is written there? Could you repeat it for me, please? Yeah. Banks advance loans not only on the basis of the deposits of public. Rather, they also advance loans on the basis of depositing the money in the accounts of borrowers. Okay. Yes, they allocate banks. They offer the loans on the basis of the credit profile of the customer as well. Okay, so that also matters to the banks. If the credit profile of customer is very good, so bank can go ahead and offer the loan even if the rules and regulations are not giving the leeway to the bank. Got my point? You got it? Yes. Sir, it is banks paid up capital plus free reserves. What is it, sir? Banks paid up capital. Yes, sir. Banks paid up. See, कुछ ऐसा होता है कि मैं इसमें स्क्रीन शेयर का एक ऑप्शन यूज कर रहा हूँ. Just give me 1 minute so that I can use the PPT side by side. That will make our doubt session more effective. Just a minute, huh? So here we go.
Can you see the PPT on your screen now? Yes, sir. Okay, so just a minute. Yes, see, बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें लाइबिलिटी साइड है, देयर इज वन लाइबिलिटी साइड एंड देयर इज अनदर साइड दैट इज कॉल्ड एज एसेट साइड. वी आर टेकिंग एसेट साइड टू बी ऑन दिस साइड एंड लाइबिलिटी साइड टू बी ऑन दिस साइड. लाइबिलिटीज मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो एक तो होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड द शेयर कैपिटल दैट अ बैंक इज ऑथराइज्ड टू इशू. ठीक है, ये हो गया मान लो 10,000 करोड़ रुपीस. दूसरी साइड होता है पेड अप. इसमें से पेड अप कितना है, कितना शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया है. हो सकता है बैंक ने सिर्फ 2,000 करोड़ रुपीस के शेयर्स इशू करे हों, तो इसको पेड अप कैपिटल कहा जाता है. इफ यू चेक योर स्क्रीन नॉट ओनली ऑन द Zoom मीट but also on the class panel, you'd be able to see what I have written on the screen, right? Zoom call में भी सभी को दिख रहा है. किसी और का डाउट है तो पूछ सकते हो. आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन. जिसको चाहे आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो. बट अगर किसी का इसी से रिलेटेड कोई डाउट है, so that we need not repeat all this again and again, right? Yes, Prahlad, you can write also whatever you want. अब जैसे प्रहलाद has made a streak on the screen. किसी और का भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो guys. Please, huh? So, I'm standing in front of the camera now. Is it fine now, everyone? Harsh, you've muted yourself. आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है. अनम्यूट करो पहले. Sorry. Yes. Yeah. Please ask your doubts now quickly. हर्ष, इसके अलावा कोई और डाउट है इसी में? लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब बैंक इज अ थर्ड, बैंक इज अ सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ द लॉ. ऑलराइट, बैंक सिंस इट इज अ सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ द लॉ, तो बैंक का जो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, इवन दो द शेयर होल्डर्स आर दी owners of the bank, but because bank is registered as a separate entity under the Banking Companies Act, तो बैंक शेयर होल्डर से लिए गए पैसे को जिम्मेदारी दिखाता है. ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब आरबीआई ने, सेबी ने बैंक को ऑथराइज किया है कि आप इतना कैपिटल टोटल इशू कर सकते हो, लेकिन जो अभी तक कैपिटल इशू किया गया है वो सिर्फ 2,000 करोड़ किया गया है एज पर आर एग्जाम्पल. ऑलराइट, yeah. Last point, for the continuation of the last sentences, they create loans out of deposits and deposits out of loan. So what does this mean? They create deposits out of loans and loan out of deposit and deposit out of loan. yes. अब अगर मैं ये एंटिटी हमने बैंक बना दिया, यहाँ पे किसी ने पैसे डिपॉजिट किए, ये हैं डिपॉजिट्स किए गए पैसे को विजय माल्या को लोन दे दिया या मुझे कार लोन दे दिया, एंड लोन्स जो दिए गए हैं मतलब जो डिपॉजिट्स हुए उसमें से लोन दे दिए, एंड जो लोन का पैसा डिपॉजिट हो रहा है ईएमआई जो आएगी उससे डिपॉजिट क्रिएट कर दिया. रिवर्स वे में जिस डिपॉजिटर का ये पैसा था 10 लाख, ठीक है, डिपॉजिटर के पैसे 10 लाख में से विजय माल्या को लोन दे दिया 10 लाख. अब जब इस लोन पे ईएमआई आएगी 10,000 की, तो वो उसी डिपॉजिटर के पैसे में वो दोबारा से लोन के वे में दिखने लग जाएगी. राइट, इज दिस क्लियर? आप अपनी चैट को अनम्यूट करो हर्ष. यू आर म्यूटिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन. Yes, is it clear? Sir, I think there was a voice glitch or it was not from my side. Okay. So बैंक क्या करता है, जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो उसी में से लोन देता है, एंड जो आपने लोन की ईएमआई दी उसमें किसी और के खाते से जो अकाउंट से पैसे. Actually, we can't hear you. No. Okay, wait. Now you can hear me? Yes, sir. So बैंक क्या करता है कि बैंक जो किसी ने पैसे बैंक को दिए उसमें से बैंक एक डिपॉजिट क्रिएट कर देता है. डिपॉजिट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, लेकिन आपके दिए गए डिपॉजिटेड मनी को वो किसी और को लोन दे देगा.
लोन दे दिया। अब जब जिस पर्सन को लोन दिया गया है वो पैसे वापस रिटर्न करेगा तो आपके अकाउंट में कुछ पैसे वापस डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ रीड दैट लाइन वंस। They create loans out of deposits and deposits out of loan. डिपॉजिट्स आउट ऑफ द लोन्स। अब जब लोन के जो पैसे दिए गए हैं, ये ना एक्चुअली मैं M1 M2 M3 जब दोबारा से समझाऊंगा तो भी ये चीज आपको दोबारा से क्लियर होगी एक बार। जब हम किसी बैंक में, मान लो कि एक बैंक है, वैसे तो दिस विल बी कवर्ड लेटर ऑन इफ देयर इज जस्ट वन बैंक। अब किसी ने बैंक ने एक पर्सन के डिपॉजिट्स हैं, दूसरे पर्सन को लोन दिया जा रहा है। अब इसके डिपॉजिट्स में से 10 लाख रुपीस में से इस पर्सन को लोन दे दिया गया 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख रुपीस इस पर्सन का भी तो बैंक अकाउंट है ना, उस बैंक अकाउंट में इसने डिपॉजिट करवा दिए। अब अगर ये बैंक से, ये है मान लो बैंक ऑफ इंडिया से ये पैसे एसबीआई में चले गए। एसबीआई क्यों चले गए एसबीआई में? इस पर्सन ने 5 लाख रुपीस की कार ली, जिससे कार ली है मारुति से, मारुति का एसबीआई में अकाउंट है। अब ये पैसे 5 लाख मारुति के अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। बैंक इस 5 लाख रुपए पे सीआरआर एसएलआर कुछ लगाने के बाद, सारा कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद बैंक इसमें से 4.5 लाख रुपए का एक और लोन दे देगा। तो दिस इज हाउ मनी मल्टीप्लायर फंक्शंस। मनी मल्टीप्लाइज इटसेल्फ इन दिस मैनर। है 10 लाख रुपए शुरुआत में, उस 10 लाख का 5 लाख एक और दे दिया। जिसने 10 लाख रुपए, जिसने ये 10 लाख रुपीस डिपॉजिट कराए, वो सो रहा है आराम से, उसको लग रहा है कि मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं, लेकिन उसके पैसे विजय माल्या के पास चले गए, 5 लाख रुपए मान लो। अब ये 5 लाख रुपए विजय माल्या ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कराए, उसने कार ले ली, ठीक है, या जहाज ले लिया, कुछ भी ले लिया। तो जिस कंपनी से वो एयरक्राफ्ट या कार खरीदी गई है, उस कंपनी का अकाउंट एसबीआई के पास है। तो दिस इज हाउ। अब ये बैंक क्या करेगा? सीआरआर और एसएलआर माइनस कर देगा इसमें से, क्योंकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंकिंग एक्ट क्या, आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई कहता है कि सीआरआर एसएलआर लगाने के बाद जितना पैसा बचेगा उसको बैंक लोन के रूप में किसी और को दे सकता है। अब ये बैंक किसी और को लोन दे देगा। तो आप यहां पे ये विजुअलाइज करो कि इनिशियली सिर्फ 10 लाख रुपीस थे, उस 10 लाख रुपीस के 5 लाख यहां पे हो गए, फिर उसके बाद 4,50,000 यहां पे हो गए। इसको हम मनी मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट में भी एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, M0, M1, M2, M3, जो क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स 2020 में पूछा भी गया था। ऑलराइट, Okay, sir. या अदर्स प्लीज। सालसाबिल, यू सीम टू बी हैविंग अ, जिसको भी कोई डाउट है प्लीज raise your hand so that I can entertain your doubt and can see you. Yes, Akansha seems to be having a doubt. Akansha, please unmute yourself. Yes, Akansha. Hello, am I audible? Yes, you are audible. Hello. Yes, you are audible. Am I audible? Sir, yes. Yeah. I wanted to ask, I have a doubt regarding the debit notes that was mentioned in the GST PDF. I'm not quite able to understand the amendment thing that is mentioned as an example. So can you please just elaborate on this? Can you share your screen like I shared? If you are accessing this Zoom call through your laptop, you'll be able to do it. No, sir, I'm not. Could you please repeat what PPT or slide you are referring to? I'm referring to the GST slide. I guess the number is not mentioned actually. I'm referring it from a printout. Okay. Could you please just read out that sentence for me? Okay, so the heading is GST legislative changes in input tax credit. The time limit for availing input tax credit on debit notes is relaxed. This is done by delinking the date of issuance of debit note from the date of the original invoice. It can be understood with the help of the following example. I'm not quite able to understand this example actually. This is presented in a form of table. So if you could just See, just ignore that. Basically, that is a news clipping which I must have incorporated for you to
draw some correlation between the newspaper, the DNA, and the economy basics. Okay. So what is this referring to is, in order to ease the situation of liquidity and the financial stress at the level of micro, small and medium enterprises, this debit notes that are issued by the ministry so that they can utilize the input tax which they have already paid on the goods that they have purchased. They can use that in their during the time of their next payment of GST. Did you get an idea? सरकार क्या करती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड नहीं कर पा रही, वो पैसा सरकार ने खर्च कर दिया, ठीक है, टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा या कुछ भी, और जो इनपुट टैक्स ड्यू है, मैंने अगर टैक्स पे किया इस कैमरा को परचेज करते टाइम या इस कैमरा को परचेज करते टाइम, अब लॉजिटेक को वो टैक्स सरकार के पास जमा करना है, लॉजिटेक तो पे कर देगा, लेकिन मैं ये दिखा रहा हूं कि मैंने अपनी स्टूडेंट आकांक्षा से या आलोक से या हर्ष से जो पैसे लिए हैं 10,000 के साथ 1800 जीएसटी, वो पैसा मुझे वापस दिया जाए कुछ हद तक, उस हद तक जो मैंने कैमरा परचेज करते टाइम दिया है, ठीक है। सरकार मुझे ये कह रही है कि आप पैसे मत मांगो, रिफंड तो मिलेगा नहीं, आप एक डेबिट नोट ले लो। डेबिट नोट क्यों ले लो? क्योंकि जब ट्रांजिशन हो रही थी वैट सिस्टम से जीएसटी सिस्टम की तरफ, तब वैट सिस्टम में दिए गए टैक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहां पे क्या किया गया? डेबिट नोट दे दिए गए। अब सरकार ये कह रही है कि डेबिट नोट को यूज करने की जो लिमिट है हमने उसको एक्सटेंड कर दिया है। बेसिकली दिस इज अ न्यूज क्लिपिंग विच यू कैन यूज टू जस्ट ड्रॉ द क्रॉस कंपैरिजन बिटवीन व्हाट वी रीड इन द थियोरी एंड हाउ इज इट अप्लाइड इन द करंट अफेयर्स। Okay, sir. Okay, Thank you. yeah. Others? Alok has got a doubt. Alok, unmute yourself, please. Nancy, please wait. Good evening, sir. Yes, good evening. Sir, I have doubt regarding financial market. Hmm. Sir, what is meant by fungible assets and trading flows in financial market? What is meant by fungible assets And trading flows. Okay, fungible assets का मतलब होता है कि the ease with which an asset could be converted into liquid assets, कितनी जल्दी आप किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। Okay, the ease with which you can convert any asset into liquid, जैसे कैश अपने आप में लिक्विड है, आप बैंक में गए, आपने 2000 रुपीज का नोट दिया और बैंक ने आपको रिटर्न में एक और नोट दे दिया, राइट? Yes, sir. तो दिस इज फंजिबिलिटी। एंड ट्रेडिंग फ्लोर्स, एक बार उसका लाइन बता दो, आप किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो? रीड आउट दैट लाइन फॉर मी प्लीज। Sir, I have written this word. What is meant by trading flows? Sir, it is from money market. यस, मनी मार्केट। ट्रेडिंग फ्लोर होता है जैसे जहां पे दो मीनिंग है, एक तो ट्रेडिंग फ्लोर है फिजिकल फ्लोर जहां पे ट्रेडिंग होती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे कि फिश मार्केट में फिश की ट्रेडिंग होती है तो वो फिश का ट्रेडिंग फ्लोर हो गया। वैसे ही मनी मार्केट में फिजिकल सेंस में, फिजिकल मतलब टचेबिलिटी एंड ऑल, तो वहां पे टैंजिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे मतलब जहां पे जाके आप ट्रेडिंग करते हो। दूसरा होता है ट्रेडिंग फ्लोर, कि ये ट्रेडिंग फ्लोर लेवल चल रहा है, एक शेयर का या एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो 40 रुपए है, ये फ्लोर लेवल है। सबसे ज्यादा प्राइस कितना गया उसका आज के दिन में? 70 रुपए, तो 70 रुपीज इज द पीक लेवल। फ्लोर लेवल एट विच द ट्रेडिंग इज टेकिंग प्लेस टुडे इज 40। इससे नीचे ट्रेडिंग नहीं हो रही आज उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उस शेयर की या फिर उस डेट इंस्ट्रूमेंट की, बॉन्ड की। समझ में आया? फ्लोर लेवल ट्रेडिंग फ्लोर। फिजिकल में मतलब फर्श, Yes, sir. जैसे हम किसी फर्श पे खड़े होते हैं, वो तो हो गया फिजिकल वाला मतलब। और दूसरा ट्रेडिंग फ्लोर का मतलब ये है कि फ्लोर लेवल प्राइस क्या है, इस वे से समझ सकते हो। फ्लोर लेवल प्राइस है 40 रुपीज, द मिनिमम प्राइस एट विच अ सिक्योरिटी इज सेलिंग टुडे, एट विच द सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेडेड टुडे। एंड इसका स्काई लेवल, इसका जो टॉप लेवल होगा जो आज के दिन में इस शेयर ने टच किया है, वो क्या होगा? मे बी 70 रुपीज। Okay, sir. ओके, मतलब फ्लोर, ये ट्रेडिंग फ्लोर वाला मीनिंग यहां पे आपके कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रेलेवेंट बैठता है। जो फ्लोर मतलब फिजिकल फ्लोर जहां पे ट्रेडिंग करी जाती है, स्टॉक एक्सचेंज, ओवर द टॉप, ओवर द टेबल काउंटर, ओवर द टेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जैसे हम कहते हैं ना ओवर द टेबल ट्रेडिंग हो रही है, वो वाली चीज है यहाँ पे। ऑलराइट, Yes. या अदर्स। Yes, sir. नाउ कमिंग टू, Doubt I have. यस आलोक। What is non-depository? What is
keeping no collateral and you are getting loan? नो, नॉन डिपॉजिटरी मार्केट ये होती है जो ओवर दी टेबल ट्रेडिंग होती है. डिपॉजिटरीज मार्केट वो होती है जो डिपॉजिटरीज ये सब कर रहे हैं, राइट? जस्ट 1 मिनट. डिपॉजिटरीज मार्केट ये है जो डीमैट अकाउंट और फॉर्मल वे में ट्रेडिंग हो रही है. नॉन डिपॉजिटरी मार्केट में ये हो जाता है कि इनफॉर्मल वे में जो ट्रेडिंग चल रही है उसको नॉन डिपॉजिटरीज मार्केट कहते हैं. Okay, thank you, sir. Okay, yeah. Others, Nancy. Nancy, please unmute yourself. Yes, Nancy, I can see your thing. Yeah. Sir, you told about yield topic. Yes. Yes. खुल के पूछो, घबराओ नहीं. Yes, sir. I have a doubt that you told about yield topic and fund. I'm not able to hear you. Yield topic आगे. Sir, so can you please explain that once again in short because it was not clear. Okay. सी यील्ड टॉपिक का बेसिक मतलब ये है जस्ट अ मिनट गाइस. सो यील्ड का मतलब ये है अगर आपने गवर्नमेंट इफ यू हैव परचेज्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज की फेस वैल्यू वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपने परचेज करी और अगर इसका मार्केट प्राइस आपने परचेज करी थी, ये नैन्सी ने परचेज करी एंड अगर इसका प्राइस डाउन हो जाता है, इसका प्राइस हो जाता है 9,000 रुपीज, ठीक है, मार्केट में. अब ये तो जो है गवर्नमेंट ने आपको ये बोला कि 10,000 के आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 5 इयर्स के बाद पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है. अब लेकिन इसका प्राइस क्योंकि गवर्नमेंट ने, निर्मला सीतारमन मैम ने पैसे ज्यादा बोरो कर लिए, तो अगर मैं पैसे ज्यादा बोरो करूंगा तो क्या होगा, मेरे द्वारा लोगों से लिए गए लोन का जो पेपर जिस पे लिखा है कि मैंने लोगों को इतने पैसे देने हैं उसकी वैल्यू डाउन जाएगी ना. अगर मान लो कि किसी के फादर हैं वो कर्जे पे कर्जा लेते चले जाएं तो क्या उनके जो लेनदार हैं उनके पास में ये प्रूफ होगा कि हाँ उस फादर ने जो इतने पैसे देने हैं, लोग उसको कम वैल्यू करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वैल्यू डाउन आती है जब गवर्नमेंट ज्यादा बोरो करती है. गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन प्रिकैरियस होती चली जा रही है. नाउ व्हेन दिस इज हैपनिंग, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन खतरे में है तो ये शायद 9,000 हो गई. अब अगर ये 9,000 हो गई है तो आपको ये समझना है कि इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, 10% पे. लेकिन जो पर्सन इसको 9,000 रुपीज में, मान लो मैंने नैन्सी से ये परचेज कर ली 9,000 रुपीज में, मुझे भी 10,000 पे 10% जितना भी होता है 1,000 रुपीज मुझे मिलेंगे. अब मैं इसको अगर 9,000 पे 1,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो ज्यादा फायदा है या फिर नैन्सी को ज्यादा फायदा था? 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के बाद नैन्सी को 1,000 रुपीज मिल रहे थे. हु इज इन बेनिफिट? कौन ज्यादा बेनिफिट में है, नैन्सी और मी? Yes, sir. Actually, your voice was not clear. It was talking in between. Okay. मैं ये कह रहा हूं कि आपने सिक्योरिटी परचेज करी नैन्सी ने 10,000 रुपए की. 10,000 रुपए वाली सिक्योरिटी का प्राइस डाउन आ गया स्टॉक मार्केट में क्योंकि गवर्नमेंट ने और ज्यादा बोरो कर लिया या गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो गया. अब क्योंकि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट जो इंक्रीज हो गया उस वजह से गवर्नमेंट को तो पैसे मिल गए, गवर्नमेंट ने कर्जा ले लिया निर्मला सीतारमन मैम ने और जो भी किया, लेकिन जो इस टाइम पे इस सिक्योरिटी को होल्ड कर रहा है यानी कि नैन्सी अगर ये सिक्योरिटी आज बेचेगी तो उसको 9,000 रुपए मिलेंगे क्योंकि मार्केट में यही प्राइस चल रहा है, ये मार्केट वैल्यू है. अब अगर नैन्सी से मैं ये 9,000 रुपीज में परचेज कर लेता हूं तो जो गवर्नमेंट ने वादा किया है, जो गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है, एश्योरेंस दिया है कि 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 10,000 का 10% जो फेस वैल्यू है उसका 10% तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा.
नैन्सी की सिचुएशन ये थी कि 10,000 रुपए लगा के 1,000 रुपए मिल रहे थे। मेरी सिचुएशन ये है कि 9,000 रुपए लगा के 1,000 रुपए मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ज्यादा फायदे में हूं। क्यों? मेरे केस में यील्ड ज्यादा है। Yes. मैंने इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि एक किसान ने एक भैंस खरीदी 50,000 रुपए की, दूसरे किसान ने वो भैंस खरीदी 40,000 रुपए की। तो जब दूसरा किसान उस भैंस को 40,000 में खरीद रहा है 40,000 में, भैंस ने दूध देना है 10 ही लीटर, तो 40,000 लगा के 10 लीटर दूध मिलता है तो ज्यादा फायदा है ना। 50,000 लगा के दूध उतना ही मिलेगा तो कम फायदा है। तो फार्मर 2 के केस में, जिसने 40,000 में ये भैंस खरीदी, बफलो को परचेज किया, वो नुकसान में नहीं है, वो ज्यादा फायदे में है। यानी कि द क्रक्स इज द टेक अवे फ्रॉम दिस डिस्कशन इज yield increases, yield goes up, yield increases when the price of the government security, when price of the government security decreases, क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होने की वजह से। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। मैं आज पैसे 10,000 रुपए, नैन्सी अब ये सोच रही है कि ये 10,000 रुपीज क्यों ना अमेजन से कुछ परचेज किया जाए, ऐसा लैपटॉप जो महंगा हो जाएगा। होता है ना ऐसा मोबाइल फोन जो 9,000 में आज मिल रहा है वो कल को महंगा हो जाएगा। और पता लगा कि नैन्सी ने ये सिक्योरिटी अगले साल फिर होल्ड करके रखी और उसका प्राइस 8,500 रुपीज हो गया। तो नैन्सी वुड थिंक कि क्यों ना इस साल 9,000 रुपए का इस फोन को बेच के, 9,000 रुपए की सिक्योरिटी को बेच के एक फोन खरीद लिया जाए, और अगले साल 8,500 में ये सिक्योरिटी का प्राइस तो कम ही होना है। इसलिए जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे यील्ड गिरती है तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने लग जाते हैं। ठीक है, और क्या करने लगते हैं? कुछ और परचेज करने लगते हैं। ऑलराइट, am I connected now, everyone? Sorry, there was a technical glitch. There was an internet glitch, guys. Today we are facing a little bit problem because of the internet. Yes. Am I audible to everyone? Nancy, is your doubt clear? Sudhanshu, can you hear me? Harsh, can you hear me? Harsh? Can you hear me? You're audible now. Yes, yes. Who's there on the other side? Any doubts, guys? Now, please ask your doubts quickly. All right. Now, any doubts? Devyani, okay, please ask your doubt, Devyani. Yes, Devyani, please. So, in the Narasimham committee recommendation, Yes. in the Narasimham committee recommendation, the point mentioned that the interest subsidy element in credit for the private sector should be totally eliminated, and the interest rate on the loan under 2 lakh should be deregulated. Why is that? What is this interest subsidy element, and why is it only for the private sector? Interest subsidy element for the private sector basically means in order to promote industry, okay, in order to promote some industry in, let's say, Jhansi region of Uttar Pradesh or in Vidarbha region of Maharashtra, government says if any private company would invest in that region, we would waive off 4% rate of interest for that particular company. Or if any private hospital, Fortis Hospital, opens the hospitals in that area, we would charge lesser rate of interest on the money borrowed for that particular project. If Sonia Gandhi, as a leader of the Congress when she was in the power, if she says that अगर कोई रायबरेली में या कहीं पे ऐसा कोई प्लांट लगाएगा, मारुति का प्लांट लगाएगा, तो उस मारुति को 5,000 करोड़ का लोन लेने पे कोई 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, 7% या 6% दे दोगे। इससे बैंक्स को नुकसान हो रहा था। तो इंटरेस्ट एज अ सब्सिडी एलिमेंट शुड बी abolished, should be stopped completely, so that there is no pressure on the banks.
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इसलिए दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सरकार के पास में पैसा आएगा, सरकार के ऊपर बेरोजगारी का बर्डन कम होगा। लेकिन फिर बैंक्स के पास क्या बचा? बैंक्स को आपने बोला गरीब लोगों को प्रायोरिटी सेक्टर मान लो, ठीक है, अमीर लोगों को भी प्रायोरिटी सेक्टर ही मान लो, उनको भी सस्ते में लोन दो, इनको भी सस्ते में दो, इसीलिए ये सिचुएशन इवॉल्व हुई। ओके, इसलिए कमेटी को ये कहना पड़ा कि प्लीज लेट्स स्टॉप दिस थिंग, लेट्स स्टॉप दी सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट बेस्ड लोन्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। All right. So there is one more doubt. In the PPT, I have observed that there is a different mention of SBI and the nationalized bank. Is there any There is a difference between them? which two banks you referred to? Don't mute yourself again and again, please. Yes. So SBI and the other nationalized bank. Again, your voice got cut. Which banks? So SBI and the nationalized bank, other nationalized bank. No, there is no such difference. SBI being the largest public sector bank, that is why it is mentioned separately. Like in the world today, we say the US. ओके, यूएसए में कुछ है नहीं, बट द यूएसए बोला जाता है। एसबीआई एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स का मतलब यही है कि एसबीआई पे ज्यादा फोकस रहता है। हाँ, यदि एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट्स लिखा है तो वो एक अलग चीज है, राइट। एसोसिएट्स मतलब रेफरिंग टू द 6 or 7 एसोसिएट्स ऑफ एसबीआई which have now been merged on 1st of April 2017. This merger took place. कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है ऐसा। Okay, got it. So Devyani's doubts are over now. Anybody else? Sudhanshu, you seem to be having a doubt. Please unmute yourself. Yes, sir. Yes, yes. Sir, recently there was an article in the Indian Express that GST fight between the center and the state government is pushing the yield of the bonds. So how exactly is that fight pushing the bonds? See, जो अभी हमने देखा था जीएसटी वाला जो डाउट था, सेम डाउट। जस्ट अ मिनट। Yes, let me just share the screen with you. Can you see the screen now, the PPT one? Can you see the screen now, everyone? Okay. देखो, जब कभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइट हो रही है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे started screen sharing, but the screen is not visible yet. Screen is not visible. Now it must be visible. Just check once. Now it's visible. Now it's visible, sir. Okay. So स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जब फाइट होती है तो क्या होगा? मैं अगर सिंपल बोलूं कि एक फैमिली में 2 भाई लड़ रहे हैं, बड़ा भाई और छोटा भाई, तो क्या होगा? जो कर्जदार हैं, जो लेने वाले हैं पैसे, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, या क्या होगा उन पे? ये होगा कि वो उन दोनों भाइयों की, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में अगर लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? उनकी बॉन्ड सस्ते में बिकने लगेगी, और अगर उनकी बॉन्ड सस्ते में बिकने लगेगी तो जो हमने 9,000 प्राइस लिया था, इंटरेस्ट तो उस पर सेम ही मिलना है, ठीक है। मान लो कि ये जो बॉन्ड थी ये अंबानी ने इशू करी थी, मुकेश अंबानी ने 10,000 रुपीज की। अब क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? 8,500। तो जब इसका प्राइस 8,500 हो जाएगा, 8,500 पे भी 1,000 तो मिलना ही मिलना है। तो यील्ड बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे एमआरपी, जैसे जैसे मार्केट वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? 10,000। फेस वैल्यू वो होती है जो मेंशन्ड होती है, जैसे एमआरपी मेंशन्ड होता है, और जो मार्केट में जिस प्राइस पे वो बॉन्ड ट्रेड कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जैसे जैसे गिरती जाएगी माय डियर, वैसे वैसे यील्ड बढ़ते जाएगा। यील्ड क्यों बढ़ रहा है यहां पे? कि मैंने सिर्फ एक पर्सन ने 10,000 लगाए, उसको 1,000 मिल रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे पर्सन ने 9,000 लगाए। यस, करेक्ट है सर, वो तो सही है, बट इसकी वैल्यू गिर क्यों रही है? मतलब 9,000
85. Why will it come down? मार्केट जो है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो इवेंट्स कराती हैं, जैसे कि कोई कंपनी आईपीएल करा रही है, कोई कंपनी सहारा जो है क्रिकेट मैचेस करवा रही है परसेप्शन वैल्यू बनाने के लिए। अब दो भाइयों के बीच में अगर फ्यूड है तो मान लो कि किसी लड़की वाले को उन भाइयों से किसी से एक से शादी करनी है, तो क्या वो शादी करेंगे? नहीं करेंगे। मार्केट परसेप्शन पे काम करता है, इवन दो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी आर वेरी गुड। ठीक है, दोनों भाइयों के पास में पैसे हैं, गवर्नमेंट के पास में भी पैसे हैं, ले दे के गवर्नमेंट के पास में जीएसटी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या है ना, स्पेक्यूलेटर्स इस मोमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं कि अच्छा अब दोनों में लड़ाई हो रही है तो शकुनी तो फिर आ ही जाएगा कोई ना कोई, तो स्पेक्यूलेटर्स यहां पे शकुनी का काम कर रहे हैं। अगर मैं लेमैन्स वे में ये बताना चाहूं, देयर इज नथिंग, अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बट हाँ रेपुटेशन खराब होती है। रेपुटेशन ये खराब हो रही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पता नहीं क्या होगा, किसकी फेवर में फैसला डिसाइड करेगी जुडिशरी, सेंटर क्या स्टेट्स को पैसे देगा या नहीं। अब अगर ध्यान से सुनना, इसके पीछे सेंटर स्टेट्स को उनके पैसे टाइम पे नहीं देता, तो जिसने स्टेट गवर्नमेंट की बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्या उसके पसीने छूट रहे होंगे कि नहीं? बोलो यस। Your voice is gone. ऐसा नहीं हो सकता। वॉइस इज देयर वेरी मच। इज एनीबडी एल्स फेसिंग दी? समझ गए अभी कि नहीं? Now okay sir. समझ में आया ना? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को आगे, अब अगर देखो बैंक ने स्टेट गवर्नमेंट की ये बॉन्ड ले रखी है, क्यों ले रखी है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसे देने थे स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने बैंक को, पीएनबी को ये बॉन्ड इशू कर दी। अब पीएनबी की डेट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड इज कमिंग नियर, बट देयर इज अनसर्टेनिटी अराउंड द पेमेंट ऑफ द जीएसटी ड्यूज by the central government to the state governments. Would the price of the bond come down or not? नैन्सी आपको भी ये क्लियर होना चाहिए, प्राइस बॉन्ड का डाउन होगा क्योंकि डेट ऑफ मेच्योरिटी इज कम अप्रोचिंग, बट देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर वेदर स्टेट गवर्नमेंट वुड बी हैविंग द मनी और नॉट। अब इस केस में पीएनबी क्या करेगा? Sir, if there is uncertainty, then why will somebody else subscribe to that bond? When PNB had subscribed to that bond, then the uncertainty wasn't there. ठीक है? Right? When PNB, times change, times are very volatile, especially so in case of financial markets, in money market, when we are dealing with money. Yes, 2 months back, gold price was around 53,000. Nobody knew that it will come back again to 48, 50, something like that. So this is the part and parcel of financial world. अब बॉन्ड का प्राइस डाउन हो गया। 3 साल पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कर्जा लिया था पीएनबी से। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पीएनबी ने बोला पैसे दो, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि पैसे नहीं है, बॉन्ड ले लो। अब बॉन्ड ले ली पीएनबी ने कि अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रही है और सरकार की बॉन्ड है, लेकिन सरकार को दूसरी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसे नहीं दे रही तो पीएनबी क्या करेगा? पीएनबी ये बोलेगा ले लो यार, रद्दी के भाव ले लो, 8500 में ले लो, मेरा पीछा छोड़ो, कम से कम 8500 तो आएंगे। अब जो खरीदेगा उसके लिए ये यील्ड बढ़ रही है क्योंकि वो सरकार के प्रॉमिस पे रिलाई कर रहा है कि उसको 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, 1500 तो कमाई ये हो गई, प्लस 1000 उस साल का इंटरेस्ट मिलेगा। नैन्सी आपको भी ध्यान देना होगा इसमें। ऑल राइट, Yes sir. या others, let me just exit from this mode. Yeah, Sudhanshu, Salsabil, you don't have any doubt? Rajiv, Ambika, Alok, should we conduct the doubt session for polity also tonight? Please. You can unmute tax expenditure, okay? Just give me 1 minute, guys. There are some students waiting in the back end. Just 1 minute.
All right. So, can you see the screen now? There is a lag of 5 to 7 seconds. Can you see the screen now? Yes, sir. Yes, okay. टैक्स एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो, टैक्स एक्सपेंडिचर का सिंपल मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, ध्यान से समझना, आज मैं थोड़ा डिटेल में समझा दे रहा हूं इसे. गवर्नमेंट कलेक्ट्स द टैक्स फ्रॉम इंडस्ट्री. कंपनीज ने टैक्स पे किया, गवर्नमेंट के पास वो टैक्स आ गया, ठीक है. तो अब ये जो टैक्स आया, गवर्नमेंट इस टैक्स को सब्सिडीज के फॉर्म में, इंटरेस्ट सब्सिडी और एनी अदर सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ये सब के वे में गवर्नमेंट टैक्स को कंपनी को वापस दे देती है कि ठीक है, तुम इतने एक्सपोर्ट्स करो, हम तुम्हें ये सब्सिडी दे देंगे. ये क्या है? पहले पैसा कलेक्ट किया और फिर उसको सब्सिडी के वे में बेच दिया. डन, फेयर इनफ. दूसरी तरफ क्या है ना कि गवर्नमेंट इस टैक्स को कलेक्ट ही नहीं कर रही, वो ये बोल रही है कि 10% टैक्स बनता था, तुम इसको 5% पे कर दो. टैक्स इज गेटिंग एक्सपेंडेड, टैक्स बीइंग एक्सपेंडेड, टैक्स खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है ना यहाँ पे टैक्स एक्सपेंडिचर इसी को कहा जाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज टैक्स एक्सपेंडिचर. Who is it? What's your name? I cannot see. Okay, yes, Salsabil, tell me. Can I explain merchant discount rate? Merchant discount rate, okay. So merchant discount rate, all of you please understand, this is clear now. Tax expenditure, मैंने टैक्स खर्च ही नहीं किया, उससे पहले माफ कर दिया, ठीक है. This is done to promote industry in the backward regions or to promote any other थिंग. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जब हम पढ़ लेंगे इकोनॉमी में, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में भी यही किया जाता है. क्लियर? दिस इज व्हाट वी डू. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को माफ कर दिया जाता है टैक्स. अब आते हैं दूसरे उस पे विच ही इज आस्किंग. जस्ट 1 मिनट. ऑलराइट, जस्ट 1 मिनट गाइस. Yes, your other doubt is merchant discount rate. जब आप किसी कंपनी से कुछ पैसा लेते हो या कुछ भी किसी दुकानदार से कुछ परचेज करते हो, when you purchase anything from the shopkeeper, तो that shopkeeper tells you कि मेरे को जो है, आप अगर क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो I will charge you this much amount of money. This is his स्वाइप मशीन, जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जिसे हम बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. तो मर्चेंट पैसे डिस्काउंट करके देता है. बैंक मर्चेंट को ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे यहां हमारी मशीन नहीं होती, HDFC की ये मशीन नहीं होती, तो ये कस्टमर आपके यहां से परचेज ना करता. वी आर एनेबलिंग द कॉमर्स, वी आर एनेबलिंग द ट्रांजैक्शन हियर. दिस इज व्हाट द बैंक इज टेलिंग द पेट्रोल पंप. पेट्रोल पंप सेज कि साहब अगर आप कार्ड से पे करोगे, कोई भी कार्ड है, तो मैं आपका 2.5% पैसा काट लूंगा. यानी कि 100 रुपए पे करोगे तो वो 102 रुपए 50 पैसे चार्ज करेगा. He'll charge extra because this money is what goes to the bank HDFC for enabling the transaction. When you pay to us the fee amount through Razorpay, Razorpay is the payment gateway, right? Razorpay is the payment gateway. This is the example of physical transaction that is taking place, right? Physically you are going there, you are swiping your card. I am giving you the example of internet, these payment gateways also. You are not swiping your card, you are not going there, you are just using the payment gateway. Whatever amount you pay to us, 1% is deducted by the merchant. 1% is deducted by the payment gateway from the merchant. I am the merchant here. मर्चेंट को पैसा डिस्काउंट करके मिलता है. आप 10,000 पे करोगे, हमें कितने मिलेंगे? 9900. क्यों? 100 रुपीज कंपनी काट लेती है, ठीक है. अब वहां पे तो फिर भी ठीक है, कम कटते हैं, यहां पे 2.5 रुपए कटते हैं. बजट 2020 में निर्मला सीतारमन हैज assured that in this year merchant discount rate would be waived off completely.
मर्चेंट डिस्काउंट रेट वुड बी अ थिंग ऑफ पास्ट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब ये है HDFC पेट्रोल पंप वाले को कम पैसे देगा। अगर पेट्रोल पंप 100 रुपीज डिडक्ट करता है, 100 में से मेरे कार्ड से 100 रुपीज उन्होंने ले लिए तो उसको 97 रुपीज 50 पैसा मिलेंगे। 2.5 रुपीज वुड बी डिडक्टेड। दैट इज व्हाई ही इज आस्किंग मी टू पे 102.5 so that he is able to earn what he is due to earn, what he should legitimately be earning। 100 रुपए उसको बचने चाहिए। 100 रुपए का तेल बेचा है, 50 पैसे बचेंगे। अब अगर 2.5 रुपए बैंक काट लेगा तो फिर उसको क्या फायदा? क्लियर? इसलिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट की वजह से डिजिटल बैंकिंग इंडिया में नहीं बढ़ रही। डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग और ये सब इंडिया में इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है क्योंकि ना हमारे यहां पे पैसे आरबीआई प्रिंट करने में 2-2 हजार के 100-100 के नोट्स प्रिंट करने में काफी पैसा खर्च होता है। इसलिए सरकार ये सोच रही थी, आज तक तो हम इसको काउंट ही नहीं करते थे। सॉइलिंग ऑफ करेंसी इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया बिकॉज वी आर अ फिजिकल करेंसी market, we are a physical currency economy. Carrying cost of physical currency notes is very high in India, so government is now ready to take the burden of this merchant discount rate onto itself. Okay, government is pretending कि हम ये burden ले लेंगे, but प्रॉब्लम ये है कि ये बैंक्स को कहा जा रहा है कि आप इसको बर्डन को डील करो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट को क्यों एबॉलिश किया गया है, कम किया गया है? इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमारे यहां जो फेक करेंसी चलती है वो चीजें भी कम हो जाएंगी। डिजिटल बैंकिंग में फ्रॉड्स हो रहे हैं बट इतने मुश्किल हैं, इतने आसान नहीं है जितना आसान नेपाल से फेक करेंसी लेके आना है। हमारे यहाँ पे फेक करेंसी बहुत चलती है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी फेक करेंसी वाली। तीसरी प्रॉब्लम सरकार को क्या है? ये 2.5 रुपए बचाने के लिए अगर ये सरकार बेयर करने लग जाए तो बैंक्स, अब यहां पे हमारे ऑफिस में पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल्ड है। 600 to 800 rupees per month they charge from us as the rental value of that machine. We cannot buy that machine. अब इससे क्या होता है? कोई स्टूडेंट आता है, वो हमारे यहाँ तो नीट एंड क्लीन है, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ। कोई स्टूडेंट आएगा, वो बोलेगा कि मैं कार्ड से पे कर दूं, हम उसको बोलेंगे नहीं यार कार्ड से मत पे करो। क्यों? एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, 10,000 अगर वो हमें पे करेगा तो 30,000 मेरा इनकम टैक्स, यानी कि 7,000 मुझे बचेंगे। 7,000 में से 2.5% और कट जाएगा मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मैं उसको बोलूंगा कि तुम 10,000 छोड़ो, तुम मुझे 8,000 दे दो लेकिन कैश में दे दो, क्योंकि मुझे 30% फिर सरकार को भी दिखाना नहीं पड़ेगा। और मैं उसको ये बोलूंगा कि अगर तुम 10,000 दोगे ना तो तुम्हें 11,800 देना पड़ेगा। क्यों? 18% टैक्स भी है। तो सरकार को ये नुकसान हो रहा है। जो इंस्टीट्यूट्स या जो रेस्टोरेंट्स सिर्फ इसलिए कस्टमर को ये बोलते हैं 2.5% एक्स्ट्रा लगेंगे, 2.5% एक्स्ट्रा नहीं लग रहे, 30% सरकार का पैसा है, इनकम टैक्स जो उसको देना होता है, 18% अगेन जीएसटी जो वो गवर्नमेंट को देता अगर ये 2.5% का रोड ब्लॉक कस्टमर पे लगाने के लिए ना होता। समझ में आया? इसलिए गवर्नमेंट को समझ थोड़ी अब लेट आई है। गवर्नमेंट ने इसलिए कहा है हम इसको एबॉलिश कर देंगे। कस्टमर जो है बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करेगा, बैंक में पैसा आएगा तो हम व्यापारी से, मर्चेंट से ये पूछेंगे कि ये पैसा कहां से आया, ठीक है, ये पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, तो 30% टैक्स भी देना पड़ेगा और 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो सरकार फायदे में होगी। कहां? 48% को गवा के 2.5%। यू आर मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। समझ में आया? तो दिस विल बी अ थिंग ऑफ पास्ट। यस, क्लियर नाउ? Sir, this still, yeah, sir. This merchant discount rate still is going on, or It is still there, but it will be abolished within this budget year 2020-2021. This was a budget announcement, so budget announcements take their own time to be implemented by the government. sir, I have one more doubt. I don't know you budget you will explain, like budget estimate, This we will explain. This topic has been kept due so that when we would be near the budget and all, and as the topics are proceeding in the economy class, we would be covering that. Okay, yeah. That was all from your side? All right. Others, please. Just a minute. Yes, others. Saloni. Okay, Saloni, please ask your doubt. Sir, what is monosony? So, what is difference between monosony and oligopoly?
Oligopoly, there are a few firms, okay? There are a handful of firms, 4 or 5 firms controlling the market. For example, अब मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ. फ्लिपकार्ट इज देयर, Amazon इज देयर, मंत्रा इज देयर. 2-3 कंपनीज जब मार्केट को कंट्रोल करती हैं उसको ओलिगोपोली बोला जाता है. ठीक है. मोनोसोनी में क्या होता है? व्हेन अ सिंगल फर्म कंट्रोल्स बोथ द सेलर्स एंड द बायर्स. आपको बुक्स खरीदनी है, आप जाते हो अपनी बुक रिटेलर के पास में, बुक शॉप पे, आप बोलते हो इंडिया आफ्टर गांधी है क्या? तो ही सेज नहीं, यू आर बाउंड टू गो टू Amazon. आप कस्टमर हो, आप डिपेंडेंट हो गए. ठीक है, आप वहीं पे डिपेंडेंट हो. बुक सेलर ये बोलता है कि मैं बुक्स का स्टॉल लगा के बैठता हूं, और एक और कस्टमर वहां पे आता है, वो कोई बुक परचेज करना चाहता है, कोई और बुक, ठीक है, राम आहूजा या एम लक्ष्मीकांत. तो वो एम लक्ष्मीकांत बुक सेलर जो है 650 रुपीज की बेच रहा है. आप वहां पे जाते हो, आप Amazon पे चेक करते हो, उसको ये बताते हो कि ये तो 575 की Amazon पे मिल रही है. तो ना तो वो आपको बुक, क्योंकि उसके पास सेलर आएगा तो वो Amazon का प्राइस साइड करेगा. और अगर कोई सेलर कोई उल्टी सीधी बुक मांगता है, धीरे धीरे से क्या हो रहा है, ये जो हार्ड कॉन्क्रीट स्टोर्स हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं. दे आर ऑन देयर वे आउट बिकॉज Amazon is controlling everything. You need a small pencil or an eraser or everything. Amazon is selling everything. धीरे धीरे physical brick and mortar stores बंद होते चले जा रहे हैं. This will empower Amazon even more to decide the prices. Amazon will emerge as a, or it has already emerged as a monosony firm. There are some things which you get only on Amazon. राइट. पहले ऐसा होता था कि वो फिजिकल स्टोर में भी मिलता था और वो यहां भी मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है. मोनोसोनी में फर्म कंट्रोल्स बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स. सेलर्स को बोला जाएगा वो एम लक्ष्मीकांत हमें 300 रुपए में दो. सेलर के पास और कुछ बेचने के लिए नहीं है. पब्लिशर कहां बेचेगा, TMH कहां बेचेगी, Amazon को देगी कि चलो 300 रुपए तो मिल रहे हैं. अब सेलर को वो बुक चाहिए क्योंकि बायर को वो बुक चाहिए, क्योंकि बायर को यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है. तो वो बुक जो 650 रुपीज में मिल जाती थी, Amazon ने पहले आपको लालच देके 575 रुपीज में बेचनी शुरू कर दी. फिर वही बुक का दाम, जब कोई सेलर और नहीं है, उसका दाम 750 रुपीज कर दिया. तो दिस इज गुड इन द शॉर्ट टर्म, बैड इन द लॉन्ग टर्म. जैसा आज उबर और ओला में हो रहा है. पहले टैक्सी बुक करते थे, वो 150 रुपए मांगता था, 200 रुपए मांगता था, लेकिन आप उसको क्या बोलते थे, Amazon वाला तो, ये उबर वाले तो 75 रुपीज में वहां पे ड्रॉप कर रहे हैं. वो सारे टैक्सी वाले अब उबर ओला पे आ गए. अब आप टैक्सी स्टैंड पे जाते हो तो वहां पे रिक्शा मिलता है, राइट, कोई और नहीं मिलता. तो ये प्रॉब्लम क्या है, मोनोसोनी ये फर्म्स क्रिएट कर रही हैं. क्लियर? यस Sir, I have one more now. yes. Sir, what is durable and non-durable goods? ड्यूरेबल गुड्स आर एयर कंडीशनर, लैपटॉप, फैन, AC, जो भी है, टीवी, LED, रेफ्रिजरेटर, दैट इज ड्यूरेबल. ओके. नॉन ड्यूरेबल गुड्स को हम थोड़ा, जो हम समझ रहे हैं उसको बोलेंगे फास्ट मूविंग. ड्यूरेबल होता है लॉन्ग लास्टिंग. अब ऐसा तो है नहीं कि AC आप हर साल परचेज करोगे. So that is durable. Durability means long lasting, the capacity of a good to last for a longer time. That makes it durable. Non-durable means जो आज ली खत्म हो जाएगी, जैसे कि फुल झाड़ू या और चाय पत्ती, कुछ भी, ठीक है, टी पाउडर या कुछ भी जो आपको बार बार खरीदना पड़ता है. That is non-durable goods. ठीक है. अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की सेल बढ़ती है, इसका मतलब कंज्यूमर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें परचेज करने के लिए आगे आ रहा है. तो इसका क्या हम इसको सिग्नल मान सकते हैं कि इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा है? नहीं. बट अगर FMCG या नॉन ड्यूरेबल गुड्स की सेल कम हो जाती है तो फिर हम ये मान सकते हैं कि इकोनॉमी में बहुत बुरे लेवल का डिजास्टर, बहुत बुरे लेवल का डिप्रेशन या रिसेशन और ज्यादा ग्रेव होने जा रहा है. क्यों? क्योंकि फिर मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर के पास पैसे जो हैं वो अपनी जरूरत की चीजें भी खरीदने से हिचकिचा रहा है. उसको अपनी इनकम, एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी है कि आज ये 10,000 हैं, कल ये होंगे कि नहीं. दूसरी तरफ ड्यूरेबल गुड्स की सेल जब बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि आज मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं एयर कंडीशनर लेने की सोचूंगा ना, रेफ्रिजरेटर चेंज करने की सोचूंगा. अगर पता लगे कि नौकरी खतरे में है तो मैं रेफ्रिजरेटर या टीवी क्यों परचेज करूंगा? ठीक है. तो ड्यूरेबल गुड्स की सेल जब बढ़ती है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉक्सी फॉर इंक्रीज इन दी
GDP growth rate. That is considered to be an indication for the increase in the GDP in the coming years, in the coming months or in the coming time period. Yes. Thank you. Yeah. Yes. Kumari Sneha, you can ask your doubt. Please unmute yourself. Nancy, okay, I will answer your doubt. Kumari Sneha, please ask your doubt first. Unmute नहीं हो रहा, रुको. All right. आप एक बार ट्राई करो अनम्यूट करने का, अनम्यूट हो जाएगा. From my side it is enabled. Anyone can unmute. Okay, let's go to for now. Any other person asking for the doubt? Jill, you are in the chat room now. Nancy, I'll entertain your doubt. 2 minutes दे दो सिर्फ. Shalu, you can ask. Okay, Nancy, you can ask your doubt now. Yes, yesterday you told about asset reconstruction company, and there you told about bad loans. So how bank will decide whether the loan is bad or not? Like what the bad loan exactly means? Nancy, if you do not pay your loan for 3 months, 90 days, your loan is considered to be doubtful and stressed asset. That means bank is considering you to be a defaulter. Okay, so this is the parameter adopted by the bank to consider a loan as a bad loan. If the loan is not being paid for 30 days, that is considered stressed asset. If nothing has been received on a loan in the form of EMI or capital repayment for 6 months, then that loan is considered to be a bad loan. Okay. Okay, fine. So others? Nobody else? Kumari Sneha, I'm waiting for you. Alright guys. So that was all. Nobody else has got any doubt. Anmol, koi doubt hai? There will be personal Zoom call sessions as well. Okay. Unable to unmute. देखो बच्चे, YouTube पे आपको थोड़ा सेशन देखना पड़ेगा कि कैसे इसको ऑपरेट करना है, क्योंकि हमारी तरफ से यहाँ से एक्टिवेटेड है. You can unmute yourself anytime you want. थोड़ा सा YouTube पे एक्सप्लोर करो इसको. So from my side, it's enabled. Sir, can you explain recapitalization bonds? Yes, I will explain recapitalization bonds. Yes. Who was it? Kumari, you can ask. आपने अपनी सेटिंग्स कुछ ऐसी कर रखी हैं कि yes. Good evening, sir. Sir, could you please explain put and call option? जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है. ओके, सो Okay, sir. One more question. There is a phenomenon that bull and bear thing in the market. यस. So, sir, कुछ लोग होते हैं जो कि bull market मतलब उनके पास वो लोग मतलब ऐसे ट्राई करते हैं कि bull market जो है या some people want की bear, तो वो कैसे अफेक्ट करता है कि इन्वेस्टर को? इन्वेस्टर को देखो, अगर मैंने शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, और मैं नहीं बेच रहा हूं, तो मेरे को लगता है कि शेयर्स बढ़ेंगे, तो एज एन इन्वेस्टर आई विल स्टे इन्वेस्टेड इफ आई एम बीइंग बुलिश. ठीक है. और बेयरिश होता है जिसको ये लगता है कि शेयर्स के प्राइस गिरेंगे, और जब शेयर्स के प्राइस गिरेंगे मैं तब इन्हें परचेज करूंगा. तो बुलिश एंड बेयरिश. इन्वेस्टर को ये हेल्प, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, अगर तो मार्केट बुलिश लोग ज्यादा हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना सही है. अगर बेयरिश लोग ज्यादा हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, मैं फिर इन्वेस्ट करूंगा,
या मैं अभी अपने शेयर्स बेच देता हूं, तो जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उसको उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। जब शेयर्स के प्राइसेस गिर रहे हैं, बियरिश लोग ज्यादा हैं, पीपल विद बियरिश आउटलुक आर मोर इन नंबर, तो फिर उसको अभी के लिए वेट करना चाहिए। ओके, and the other doubt there was a doubt in the chat section, let me just have a look at that doubt as well. What is triple E, Anmol? Triple E and EET and how it affects the government's position. गवर्नमेंट की ट्रिपल ई होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, EET होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट टैक्स। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद बाकी के। Okay, Orashri, I'll explain that. So can you all see that screen now? All right. So exempt, exempt, exempt. आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया, आपकी इनकम थी 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए में से आपने 2 लाख रुपए प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करा दिए। इस 2 लाख पे जिस साल आपने ये इन्वेस्टमेंट करी उस साल एग्जेम्प्ट हो गई। यू नीड नॉट पे 30% टैक्स ऑन दिस। ठीक है, आप बच गए, अदरवाइज आपको 30% टैक्स लगता, बच गए, एग्जेम्प्ट, फर्स्ट एग्जेम्प्ट। यू आर गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इट एवरी डे, that is also exempted because government wants you to invest more part of your money into provident fund, then also you are saved of the pain of paying tax on the interest. Exempt first amount, the tax on investment is 0, no tax on investment. जो आपने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करी, नो टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा एग्जेम्प्ट, नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट बीइंग पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट लिख रहा हूं। ठीक है, नो टैक्स ऑन इंटरेस्ट लिखना हो तो जिसे लिख सकते हो यहां पे। ठीक है, तीसरा एग्जेम्प्ट है नो टैक्स ऑन विड्रॉल। अब विड्रॉल के टाइम पे तो टैक्स लगना चाहिए ना, तो एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब इसका ऑपोजिट ये कहा जा रहा है कि चलो एनालिस्ट्स ये कहते हैं कि पहली बार एग्जेम्प्ट किया ठीक है, दूसरी बार एग्जेम्प्ट किया ठीक है, लेकिन ये तीसरी बार वाला एग्जेम्प्ट नहीं करना चाहिए। जब कोई पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि फिर कोई जानबूझ के जाल में फंसेगा ही क्यों, अल्टीमेटली जब निकलने पे टैक्स लगेगा तो फिर कोई क्यों निकलना चाहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब हाउ डज इट अफेक्ट द गवर्नमेंट्स पोजीशन? गवर्नमेंट की पोजीशन कुछ इस तरह इंपैक्ट होती है कि जब ये पर्सन पैसे विड्रॉ कर रहा है, गवर्नमेंट यदि तब भी टैक्स नहीं चार्ज करेगी तो गवर्नमेंट को 30% टैक्स और मिल जाता। दिस विल इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट। अगर टैक्स और मिलता तो दिस वुड हैव रिड्यूस्ड फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट वुड हैव कलेक्टेड मोर टैक्स रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती, यहां पे टैक्स एग्जेम्प्ट टैक्स होता तो गवर्नमेंट को ये 30% और मिल जाता। ऑलराइट, गोइंग बैक टू द अदर थिंग, यस, ओके, व्हाट इज स्टॉक वारंट? प्लीज इसको दोबारा से पढ़ोगे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। I did not get the concept of home loan under the statement of tax expenditure वाला ही concept है ये। Aroshri दे, this is the same on provident fund, okay, किसान विकास पत्रा, basically this is on Salsabil, this is on provident fund only, okay। Now stock warrant होता है जब आप कोई शेयर्स परचेज करते हो तो आपको 5 साल के बाद कुछ और शेयर्स खरीदने के लिए एक वारंट दिया जाता है। दैट इज लाइक अ डिस्काउंट कूपन, कि आप अगली बार जब शेयर खरीदोगे, कंपनी के शेयर आपको 500 रुपए में दे दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू चाहे 800 रुपीज क्यों ना हो। शेयर वारंट आपके पास रहता है जब आप किसी न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हो तो वो आपको शेयर वारंट दे देते हैं लुभाने के लिए, ताकि आप कंपनी के और शेयर्स को परचेज करो। क्लियर? नाउ अदर डाउट्स? Recapitalization bond. Shalu, why are you not live? The live session is kept for you guys only.
ऑलराइट, रीकैप बॉन्ड्स, बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए इशू की जा रही बॉन्ड्स को रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स कहा जाता है। रिकैपिटलाइज, एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू, रिकैपिटलाइजेशन, दीज बॉन्ड्स आर फॉर रिकैपिटलाइजेशन। ऑलराइट, रिकैप, तो अब क्या हो रहा है, बैंक्स ने बॉन्ड्स को गवर्नमेंट से परचेज कर लिया। दिस इज एसबीआई। एसबीआई के पास में डिपॉजिटर्स के पैसे थे, उन डिपॉजिटर्स के पैसे से एसबीआई ने क्या किया, लोन परचेज कर, लोन दे दिया किसको, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड्स इशू करी और बैंक्स को बोला कि तुम ये बॉन्ड्स परचेज करो। बैंक्स ने ये पैसे डिपॉजिटर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिए और इन बॉन्ड से गवर्नमेंट ने दोबारा से बैंक्स को ही पैसे दे दिए। तो दिस इज लाइक कॉस्मेटिक अकाउंटिंग। नया पैसा कहीं से आया, कुछ बोरो किया नहीं। बैंक्स के जो डिपॉजिटर्स के पैसे हैं वो बैलेंस शीट में क्या दिखेंगे, लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी कितने की, ये बॉन्ड्स किसी बैंक ने 5,000 करोड़ रुपए की खरीदी। ठीक है, अब लायबिलिटी जो है 5,000 करोड़ यहां पे और चली गई। लायबिलिटी जो है डिपॉजिटर्स का पैसा लायबिलिटी है, उस डिपॉजिटर्स के पैसे से बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज कर ली। ठीक है, लायबिलिटी तो इंटैक्ट है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 5,000 करोड़ और आ गए। गवर्नमेंट इज द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का पैसा क्या होता है, लायबिलिटी, बिकॉज अ बैंक इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। अब क्योंकि एक बैंक जो है अलग एंटिटी है, एक अलग इंसान है लॉ के लिए, कंपनीज एक्ट या बैंकिंग एक्ट के लिए, बैंकिंग कंपनीज के अंदर बैंक का अपनी आइडेंटिटी है, तो शेयर होल्डर का पैसा बैंक के लिए क्या है, जिम्मेवारी। दूसरी तरफ बैंक के पास ये 5,000 करोड़ कैश आ गया। ठीक है, अब आप यहां पे देखोगे जिम्मेदारी तो दो बार बढ़ी हुई है। एक जिम्मेदारी थी कैश की, ठीक है, उसको बैंक ने एसेट बना लिया, एक एसेट बन गया। दूसरा एसेट क्या बना, जो बॉन्ड्स परचेज करके रखी हैं। जब गवर्नमेंट ने बैंक को पैसे दिए कि ये लो 5,000 करोड़, कर लो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो को कंप्लीट, ठीक है, जो 9.5% कैपिटल एडिक्वेसी रेशो बैंक्स को पूरा करना है, तो बैंक को कैश दे दिया गवर्नमेंट ने। दूसरी तरफ बैंक के पास 5,000 करोड़ के एसेट्स भी तो हो गए, बॉन्ड पेपर वो एसेट हो गए। ले दे के बैलेंस शीट का टोटल कितना आया, 5,000 प्लस 5,000 10,000, यहां भी 10,000 और यहां भी 10,000। तो कोई फर्क नहीं पड़ा बैंक को, दिखाने के लिए बैंक की हालत थोड़ा सॉलिड हो गई, लेकिन गवर्नमेंट के सिर पे निर्मला सीतारमन के 4 बाल और सफेद हो गए। कर्जे के नीचे बाल, बाल कर्जे में होता है ना, बोलते हैं ऐसे, है ना, इसलिए मैडम थोड़ा ज्यादा बोझ में रहती है, राइट। गवर्नमेंट का बर्डन, बैंक का जो बर्डन था वो गवर्नमेंट ने अपने सर ले लिया। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या थी, अगर एसबीआई की ओनरशिप को मेंटेन करके रखना है तो गवर्नमेंट को ये शेयर अपने पास ही रखने पड़ेंगे। शेयर्स बेच के गवर्नमेंट अपने पहले वाले एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेच के कैश जुटा के बैंक को दे सकती थी, बैंक को कैश भी मिल जाता शेयर्स बेचने पे, लेकिन गवर्नमेंट ने बैंक्स में इक्विटी मेंटेन करने का ऑप्शन चूज करा। ओके, सो anybody else here to raise the hand? I will entertain only those doubts. Twinkle, you were asking some doubt. I cannot see your name now. I'm not going to entertain the doubts from this thing. Chat box से doubts नहीं raise करूंगा मैं। अभी फटाफट से इधर से पूछो guys. All right, nobody else to ask the doubts. That is all for today, it seems. Anmol, any doubt? No doubt. Okay, तुम लोग शर्माते हो, आवाज सुनाने में क्या चला जाएगा। मैंने कोई ये थोड़ी कहा गाना सुनाओ, है ना, किसकी तरह, अरिजीत सिंह की तरह। Unable to unmute, वो तो आपको करना पड़ेगा। Is anybody facing the same problem? Okay, Ambika, you can type your doubt and send it across.
All right. So was it all, guys? You have to do it yourself, Ambika. Okay, Ambika, voting rights in equity shares. Equity shares के voting rights सबसे ज़्यादा होते हैं. Equity shares are like the owners of the company. They are like the मालिक of the company. Okay, equity shares voting rights के हिसाब से कंपनी की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं. ठीक है, they are the since they are the owners of the company, they decide the voting rights. Clear? They decide the policy of the company by. Yes. Hello. Yes. Sir, why stock exchange come under security market? Repeat, please. Please repeat. Sir, why stock exchange come under secondary market? Why? Stock exchange come under secondary market. Please type it. I'm not able to understand you, Ambika. Please type it in the comment section. I'm having a look at the comment section parallelly. Salsapil, I am also not able to understand why, what comes under secondary market. Okay, so is anybody else, Prachi and others who are watching it on the website jatinverma.org, you can ask your doubts today, guys. It's been a long time, like we are having this doubt session. Okay, so shall I why stock exchange comes under secondary market? Stock exchange secondary market ही है because where the exchange of old shares is taking place, that is called as secondary market. If the new shares are being sold on the stock exchange, then it would not be called as secondary market. So the marketplace where the old shares are purchased and the old shares are sold, or old bonds and shares are sold, that is called secondary market only. Like you purchase a new car from the dealership, from the agency, that is primary market. But when you are selling the old car, you are selling it to True Value or समथिंग लाइक दैट. आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हो ना कार बेचने के लिए, तो सेकेंड हैंड मार्केट को प्राइमरी मार्केट थोड़ी कहते हो, और ना ही वहां पे कोई नई कार बिक रही. कभी देखा है सेकेंडरी मार्केट में नई कार बिक रही हो? नहीं बिकती. वैसे ही प्राइमरी मार्केट में सिर्फ नए शेयर्स बिकते हैं और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ पुराने शेयर्स बिकते हैं. पुरानी सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है. ओके ओके अंबिका. Ambika, this I will explain in the next class tomorrow. Alright. So guys, this was all for the day. I think we have entertained a sufficient number of doubts for today. Alright. Enough for the day, guys. All right. Okay, Salsa Bill. Thank you everyone. Thank you guys. So this was all. Okay.
So see you at 8:30 p.m. for the polity class today. Okay. Thank you everyone. Thank you guys.